Hello dear viewers of the educators, we hope that you all are fine, and today we are here to discuss revaluation account. In our earlier videos हमने बताया था आपको कि how to prepare the revaluation account, what are the basics of revaluation account and why it is being prepared, what is the performer for the same. Now in this lecture we will discuss that how this revaluation account will be prepared in the very simple manner. So now let's start with the video. So in this case, there is a balance sheet being given. In the actual questions, you will find many more things that will be given in the question, but here we are only discussing about the revaluation account. So everything that will be included in your real questions is not being portrayed here. We are only discussing the items that are included in the revaluation account. So there is a balance sheet that is being given. Adjustments are only limited to the revaluation account. So the first adjustment is land and building. The first before moving ahead, we just want to discuss the things. We just want to reconcile all the things, all the rules. That is revaluation account के debit side में we include every item that is a loss, a type of loss for us. On the credit side, we will record all the items that will be treated as a income for us, a gain for us. So there is a performer that is the common performer. You and we all have studied it earlier. There is a particulars amount and particulars amount both on the debit and credit side. Simply let's move on towards the first adjustment, that is land building is valued at 2,50,000. If you just see that land building was earlier valued at 2 lakh rupees. So there is an increment. I had said earlier that by के अलावा अगर कोई भी वर्ड लिखा है then you have to calculate the difference. Valued at, इसका मतलब हिंदी में ये हुआ कि लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 2,50,000 हो गई. That was earlier being 2 lakh rupees. तो that means 50,000 रुपये का हमें यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है. So we will note down here, क्योंकि फ़ायदा है तो बाय में लिखेंगे बाय. कुछ लोग बाय इंक्रीज इन लैंड बिल्डिंग भी कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड स्पेस एंड लिमिटेड टाइम यू कैन जस्ट राइट डाउन लाइक दिस ऑल्सो. हम शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे जहाँ पे जगह की कमी होगी. बाय लैंड बिल्डिंग कैसे आया, 2,50,000 इसकी करंट वैल्यू हो गई एंड अर्लियर दैट वाज 2 लाख रुपीज़. दैट मीन्स देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 50,000 रुपीज़. Similarly, moving ahead, sundry creditors are ready to accept 5% less than their claim. Sundry creditors actually थे कितने के क्वेश्चन में, अगर हम यहाँ पे देखें बैलेंस शीट में, they were 50,000 rupees. They were of 50,000 rupees. And now they are ready to accept 5% less than their claim value. So 50,000 रुपये की चीज़ थी, 5% that means 2,500 रुपये. 5% कितना आया इसका, सिंपल 50,000 का 5% हुआ 2,500 रुपीज़. They are ready to accept 2,500 less than their value. So this is also a gain for us. इसको भी हम लिखेंगे बाय creditors 2,500. Simple. Now moving towards the third adjustment. Only 24,000 is required to be paid against the value of bills payable. Bills payable की वैल्यू थी 25,000 and we are only required to pay 24,000. That means we are in a position of gain of 1,000 rupees. तो हम बाय में लिखेंगे बाय bills payable 1,000 rupees. फिर हम आगे बढ़ते हैं. It is required to maintain the provision of 15% against debtors. Debtors जो कि देखिए ध्यान रखिएगा, ये 90,000 को हमें नहीं देखना है, हमें देखना है डेटर्स की वैल्यू. हमें यहाँ से पता चलती है कि डेटर्स हमारे कितने के, 1 लाख रुपए के. 1 लाख रुपए के डेटर्स पे पहले जो प्रोविजन था दैट वाज 10,000. इट वाज 10%. नाउ दिस प्रोविजन हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 15%. दैट मीन्स नाउ द प्रोविजन इज ऑफ 15,000 रुपीज़. 1 लाख रुपए का अगर हम 15% निकालें तो दैट विल कम अराउंड 15,000 रुपीज़. And the provision that was earlier being written in here in this question is 10,000. That means there is an increment in the provision for 5,000. That is a case of loss. So we will note down this loss on the debit side
to provision for doubtful debts. पहले कितना था? पहले 10 था, अभी करंट कितना हो गया? 15. That means there is an increment of 5,000 rupees. So this is the case of loss for. Then moving ahead towards the next adjustment, that is machine has been overvalued by 10,000. अब ये ध्यान रखने वाली बात है, मैं यहाँ पे इस बात को बता दूँ कि एक इसके लिंक में हम लोग एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और एक नई वीडियो इसके ऊपर बनेगी छोटी सी कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स. इसकी एक अलग वीडियो बनने की ज़रूरत है, बहुत अहमियत है इसकी, इंपॉर्टेंस है. तो इसकी एक अलग वीडियो में इसकी डिटेल में इसको हम आपको बात समझाएंगे. बट अभी हम इसको इतना से इन शॉर्ट बता दें कि अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी, हम इसको यहाँ पे शॉर्ट में बताई दे रहे हैं. अगर हम बात करते हैं ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड मीन्स जो एक्चुअल वैल्यू है उस एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा डिस्प्लेड वैल्यू है. जो भी वैल्यू आपको डिस्प्ले में दिखाई जा रही है वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है. हमने किसी चीज़ को उसकी अहमियत से ज़्यादा नाप लिया. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मोबाइल फ़ोन है जिसकी कीमत 2,000 रुपये है, असलियत में हमने 2,000 रुपये का ख़रीदा है, चाहे सेकेंड हैंड ख़रीदा है चाहे किसी भी तरीके से, मैं 2,000 रुपये का ख़रीदा है. लेकिन जब उसको कोई देखेगा तो कहेगा ये फ़ोन तो कम अज़ कम 20,000 रुपये का है. मीन्स सोसाइटी उसको 20,000 की नज़र से देख रही है, हमने ख़रीदा है सिर्फ 2,000 का. दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन हैज़ बीन ओवर वैल्यूड बाय द सोसाइटी. सिमिलरली सोसाइटी ने इसको नापा 20,000 रुपये का, उसकी एक्चुअल वैल्यू थी 2,000. दैट मीन्स सोसाइटी ने इसको 18,000 रुपये का ओवर वैल्यूएशन कर दिया, ज़्यादा इसकी कीमत नाप ली. तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो मशीन ओ को ओवर वैल्यू किया गया है 10,000 रुपये से. मशीन की कीमत जो यहाँ बैलेंस शीट में गिवन है दैट इज़ 1,50,000, 1,50,000 रुपये. ये 1.5 लाख इसकी असली कीमत नहीं है. इसकी असली कीमत इससे 10,000 रुपये कम है. यहाँ 10,000 रुपये ज़्यादा लिखें तो ये हमारे लिए एक नुकसान हुआ, तो हम इसको 2 में लिखेंगे. 2 मशीनरी, या ओवर वैल्यूड मशीनरी भी कर सकते हैं, दैट इज़ 10,000. सिंपली मूविंग फॉरवर्ड, लिखा है प्लांट हैज़ बीन अंडर वैल्यूड बाय 20%. हमने भी आपको बताया कि इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन सेपरेटली. लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जब हमने बात की अंडर वैल्यूड हुआ 20% से, दैट मीन्स अंडर वैल्यूड का कंसेप्ट क्या आता है हमारे सामने. अंडर वैल्यूड का कंसेप्ट अगर हम इसको शॉर्ट में समझें तो अंडर वैल्यूड का कंसेप्ट ये है कि हमने जो डिस्प्ले किया वो वैल्यू कम की और उसकी एक्चुअल वैल्यू इनफैक्ट ज़्यादा थी. हम वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं. हमने मोबाइल लिया 20,000 रुपये का, लोगों से पूछा ये तुम्हारी नज़र में कितने का फ़ोन है. हम एक नया फ़ोन लेके आए, हमने कहा मेरे दोस्तों ने देखा यार बड़ा अच्छा फ़ोन है यार, तो हमने कहा हाँ फ़ोन तो ठीक है. तो हमने कहा तुम बताओ कितने का लिया होगा. तो एक उसमें बंदे ने हमसे कहा कि ये 18,000 का होगा. इसका मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू से उसने कम उसकी वैल्यू को डिस्प्ले किया. इसका मतलब उसकी वैल्यू 2,000 ज़्यादा थी जो कम नापी गई. तो अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कम नापना वैल्यू को. तो जब भी वैल्यू का अंडर एस्टिमेशन परसेंटेज में होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, अभी कैसे निकलता है, हाउ इट विल डिराइव, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. अभी हम लोग से बात करते हैं दैट हाउ विल डिराइव. हम प्लांट की वैल्यू लेंगे, प्लांट इंटू 100 अपॉन 80. 80 means 100 minus 20 because it has been undervalued by 20%. That means rate 100 minus rate. So plant is of rupees 20,000 into 100 upon 80. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे that will come around 25,000. इसका मतलब the plant was actually the actual value of the plant was 25,000 rupees, but in our question it is written as 20,000 only. That means we are supposed to increase the value by 5,000. That is a gain for us. So we will write on the credit side by plant. The actual value that we are calculating is 25,000, but the question says the value is of 20,000. That means there is an increment of 5,000 that will be treated as a gain for us. Similarly, moving ahead, the plant
हैज़ बीन अंडरवैल्यूड हो गया. देन सेवेंथ एडजस्टमेंट सेज द वैल्यू हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय. ये ध्यान रखिएगा, द वैल्यू हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय. पहली बार में हमने देखा था टू ऐड था, तो हमने डिफरेंस लिया था बिटवीन न्यू एंड ओल्ड. बट व्हेन इट इज रिटन एज बाय, then you have to take this value. You don't have to calculate anything, you don't have to mix anything. आपको ना कुछ माइनस करना ना प्लस. सिंपल आपने देखा कि वैल्यू ऑफ द फर्नीचर हैज बीन इंक्रीज्ड, सो दैट विल बी द गेन फॉर यू. आप उसको बाय में लिखेंगे, बाय फर्नीचर, and the furniture is the value has been increased by 2000 rupees. Then the last adjustment is the value of the stock has been increased to. इसका मतलब है वैल्यू स्टॉक की बढ़ के हो गई 55,000. पहले वाले का मतलब क्या था कि वैल्यू प्लांट की बढ़ी कितने रुपए से, 2,000 रुपए से. मतलब यहाँ पे हमें प्रॉफिट पता चल गया था कि 2,000 रुपए का फायदा हो रहा है. बट 8th वाले में ये बात हमें आ रही है समझ में कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ के हो गई 55,000. पहले कितनी थी, पहले थी 50,000, अब हो गई 55,000. इसका मतलब अब फायदा कितने का हुआ. सो इन दैट केस ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द न्यू वैल्यू एंड द ओल्ड वैल्यू. तो जब भी बाय होता है तो इसका मतलब होता है कि हमने कितने रुपए का फायदा हुआ, हमें सिंपल पता होता है, या कितने रुपए का नुकसान हुआ अगर डिक्रीज्ड बाय है. बट अगर बाय के अलावा कोई भी वर्ड है, वैल्यूड एट, वैल्यूड या वैल्यूड अप टू या इंक्रीज्ड टू, तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि बढ़ के वैल्यू कितनी हो गई. तो फ़ायदा निकालने के लिए हम डिफरेंस लेते हैं बिटवीन न्यू एंड ओल्ड. तो अब यहाँ पे हमें फ़ायदा देखना है, तो हम देखेंगे कितने का फ़ायदा है. बाय स्टॉक अर्लियर द वैल्यू वॉज ऑफ 50,000, नाउ द स्टॉक हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 55,000. तो 55,000 माइनस 50,000 दैट इज़ 5,000 का फ़ायदा हमारा हो गया. तो दैट विल बी एंटर्ड इन द ऑन द क्रेडिट साइड. तो हमारे सामने क्रेडिट साइड में आइटम्स आए 50,000, देन 2,500, 1,000, 5,000, 2,000 and similarly 5,000. So if we just add up all the items, 50,000 plus 2,500 plus 1,000 plus 5,000 plus 2,000 and then again 5,000. So we will get the value as 65,500. टोटल आ गया 65,500. इसी के अगेंस्ट इसका भी टोटल यहाँ पे भी लिखेंगे ऐसे ही हम 65,500. ये टोटल हो गया दोनों तरफ का. अब हमने ये देखा कि डेबिट साइड का जो रफ में टोटल आ रहा है दैट इज ओनली 15,000. क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 65,500 और डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 15,000. तो व्हाट इज द बैलेंसिंग वैल्यू? वी हैव टू कैलकुलेट द बैलेंसिंग वैल्यू. सो बैलेंस वैल्यू निकालने के लिए 65,000 माइनस 15,000 जब हमने किया तो वी गॉट द बैलेंसिंग फिगर एज प्रॉफिट टू प्रॉफिट. कैसे निकला? दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. कैसे निकलता है? क्रेडिट साइड का टोटल में से, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, डेबिट साइड का टोटल 15,000 को हम माइनस कर देंगे. तो जब हम 65,500 माइनस 15,000 करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा दैट विल कम अराउंड 50,500 rupees. And because we have two partners here in this case, A and B, and the ratio of the distribution of the profit is not being mentioned, so according to the partnership deed, if the distribution of the profit sharing ratio has not been given, that will be divided equally amongst the partners. So here there are two partners, so we'll divide 50,500 by 2. So we will get the value as 25,250 rupees will be the share of A and 25,250 rupees will be the share of B here in this case, and this is how we will calculate the revaluation account, and we will derive the questions and we will derive the answer through these methods. In the upcoming lectures we will discuss the concept of provisions, concept of reserves and funds, and along with that we will discuss the how to calculate the undervaluation and overvaluation of the assets. So if you have any doubt, any queries regarding this lecture, feel free to ask. Please subscribe and like our videos. Thank you for now.